Good morning students, I hope you all are fine. In the last lecture we have done the exercise 3.2, question number 9. Now we will start with the question number 10 of exercise 3.2. Exercise 3.2 question number 10 is express each of the following numbers as the sum of 3 odd prime. जो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था ना, ऐसा ही एग्जाम्पल था इस तरह का कि जिसके नंबर्स को हमने एडिशन के फॉर्म में लिखा था, पर कितने 2 ऑड नंबर प्राइम नंबर से। अब वही क्वेश्चन अपग्रेड होके आया है। क्या आया है कि जो नंबर दिए गए हैं वो सभी नंबर्स को आपको ऐसे 3 ऑड प्राइम नंबर्स लेने हैं जिसका एडिशन करोगे। If you take the 3 odd prime numbers and add it to each other, then you can get the given numbers. But first you take any 3 odd numbers. Okay? तो ऐसे 3 odd नंबर लीजिए जिसका एडिशन अगर आप करो तो एडिशन करके आपको इन जवाब मिल जाए, ये सब जवाब। ठीक है, तो पहला वाला यहाँ पे 21 है। तो 21 के लिए आप खुद भी सोचना, मैं यहाँ पे बोलूँ आप देखो और सोचो, ऐसा नहीं है। आप खुद भी सोचो कि भाई ये 21 है, तो 21 के लिए मुझे ऐसे कौन से 3 प्राइम नंबर्स मिलेंगे जिसका एडिशन अगर मैं करूँ तो मुझे 21 मिल सकते हैं। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो आई थिंक फर्स्ट वी टेक 11 because of 11 is the odd prime number, plus 7, okay, 7 also be the odd prime number, plus 3 is the also odd prime numbers. So 7 plus 3 is 10 plus 11 is equal to 21. Understood? आपको ऐसे 3 नंबर लेने हैं जो ओड प्राइम नंबर्स है, जिसका एडिशन करोगे तो आपको 21 मिलेगा। अब 31, तो 31 के लिए मैं 70 से स्टार्ट करूँ आई थिंक। तो 70 से स्टार्ट करूँ तो 17 के बाद कोई प्राइम नंबर्स है तो वो मिलेगा मुझे आई थिंक 70 प्लस 7 करूँ तो 70 प्लस 7 इट बिकम 24, और 24 प्लस 7 ये भी हो सकता है ना। 70 प्लस 7 इट बिकम 24 प्लस 7 इट बिकम 31, है ना। 7 प्लस 7 14, तो यहाँ पे अगर मैं 40 लगाऊँ तो 7 प्लस 4 11 कैरी अप 1 31 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप ये नंबर नहीं लेना चाहते और कोई दूसरा नंबर लेना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं 70 के जगह पे 90 लगा दूँ और यहाँ पे 5, तो हो जाएगा ना। 90 plus 7 it become 26 plus 5 it become 31। आप कोई और नंबर अगर आपको खुद से आता हो तो आप कोई और नंबर भी इसमें ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कि मैं जो बोलूँ वही नंबर आपको लेने हैं। अगर आपको खुद से सीखना है तो और नंबर भी आप ले सकते हैं। आंसर 53। तो 53 के लिए मैं मिनिमम कोई ऐसा तो ऑड नंबर प्राइम नंबर लूँगा जो बड़ा होगा, लाइक 37 प्लस 30, 37 plus 30, तो it become 7 plus 3 10 carry up 1 50
प्लस 3 हो गया ना 53. Here 37 also be the prime number, 13 also be the prime number, and 3 also be the prime numbers. Okay, so 37 plus 13 plus 3. Now 53. Okay, now 61 के लिए कोई बड़ा प्राइम नंबर्स लाइक 47 ले लेता हूँ पहले. अब 47 प्लस 11, 47 प्लस 11 इट बिकम अ 58 में मैं कितना ऐड करूँगा तो 61 मिलेगा 3, है ना. 47 प्लस 10 57, 58, 59, 60 and 61 it become a 61. They all are the odd prime numbers. Okay, लिख लेना. Now here question number 11. What is the question number 11? The question number 11 is write 5 pair of prime numbers. 5 pair of prime numbers less than 20. क्या? Less than 20. 20 से छोटे प्राइम नंबर्स की पेयर हमें लेनी है. whose sum is divisible by 5. Write the 5 pair of the prime number less than 20 whose sum is divisible by 5. ऐसे हमें 5 पेयर्स लेनी है. Let me start with the 2 plus 3 is equal to 5 and 5 also be divisible with 5, है ना. यहाँ पे हमें ऐसा नहीं बताया ओड प्राइम नंबर्स या इवन प्राइम नंबर्स. अगर हमें इस तरह से बताया होता कि राइट द 5 पेयर ऑफ ओड प्राइम नंबर्स, okay, then we can't take the 2 because 2 is the even prime number. So next one is 2. 7 plus 3. 7 is the prime number, 3 is also be prime number. It become a 10. Okay. Now third one 13 plus 2. 13 also be the prime number, 2 also be the prime number. 50 is also divisible with 5. Number 4. 70 plus 3 is equal to 20. 70 plus 3 is equal to 20. It is also be divisible with 5. Number 5. Number 5 is 30 plus 7 also be 20. 30 plus 7. 30 is the prime number, 7 also be is the prime number. So there is all 5 pair of prime number whose are less than 20 and whose sum is divisible with 5. Okay, write down in your book. Question number 10. The last question of given exercise, question number 12. Fill in the blanks. The first blank is a number which has only 2 factor is called. It is the definition of prime number. A number which has only 2 factor is called a prime number. Prime number. A number which has more than 2 factor is called a composite number. Composite number. One is neither prime number nor composite number.
ओके, मैंने अभी दो अगले लेक्चर में, पिछले लेक्चर के अंदर वही बताया था आपको कि 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर बिकॉज दे हैव ओनली वन फैक्टर इटसेल्फ. द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2. ओके, 2 से कोई छोटा प्राइम नंबर नहीं है. एंड 2 इज ऑल्सो वन एंड ओनली इवन प्राइम नंबर. 2 इज ऑल्सो इवन प्राइम number. The smallest composite number is 4. Okay, क्योंकि 4 से छोटा 3. 3 is the prime number, 2 is the prime number, and 1 is the neither prime or composite. So smallest composite number is 4. The smallest even number is 2. The smallest even number is 2. The whole exercise including the previous lecture and this lecture. Okay, पिछले लेक्चर में और ये लेक्चर मिला के हमें टोटल कितने क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं. ये पूरी एक्सरसाइज अच्छी तरह से 2 पेन का यूज़ करना है, ब्लैक पेन एंड ब्लू पेन, दोनों पेन की मदद से, हेल्प से आप अच्छे हैंड राइटिंग से अपनी फेसबुक में लिख लीजिए. ठीक है. So now we will start a new topic of playing numbers is divisibility test. ये divisibility test है वो आपको long time याद रखनी है. Long time it means up to 10th standard. है? It's the heart of mathematics, basic mathematics. Okay? तो ये आपको पूरी ध्यान से कंसंट्रेशन से पढ़ना है. सभी divisibility हमको अच्छे से पढ़नी है. ठीक है. divisibility test क्या होती है कि भाई कोई नंबर दिया गया है, वो नंबर आपको देखते ही कैसे मालूम पड़ेगा कि ये नंबर कौन से डिवाइजेबल है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहीं पे कोई भी एक नंबर दे दूँ ऐसे 284369 तो ये इतना बड़ा नंबर देखते ही आपको डायरेक्टली कैसे मालूम पड़ेगा कि ये नंबर कौन से डिवाइजेबल है. 2 से है, 3 से है, 4 से है, 5 से है, 6 से है, कौन से नंबर से ये नंबर डिवाइजेबल है ये आपको डायरेक्टली सीखना हो. ठीक है. डायरेक्ट आपको देख के ही मालूम पड़ जाना चाहिए कि ये नंबर है, ये इस नंबर से डिवाइजेबल होगा या हम इससे डिवाइड कर सकते हैं. तो ये सीखने के लिए हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट देखनी पड़ेगी, जो इस चैप्टर में हम पूरे ध्यान से देखेंगे. ठीक है. तो स्टार्टिंग विद द डिविजिबिलिटी बाय 2. कोई भी नंबर को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ये हमें कब मालूम पड़ेगा? हाउ टू नो दैट द गिवन नंबर इज डिवाइजेबल बाय 2? इसके लिए हमें टेस्ट दिया गया है. अ नंबर इज डिवाइजेबल बाय 2 इफ इट हैज एनी ऑफ द डिजिट्स 0, 2, 4, 6 and 8 in its ones place. It means कि कोई भी नंबर के वंस के प्लेस पे, कोई भी नंबर के वंस के प्लेस पे इवन नंबर आता हो. कौन सा नंबर आता हो? इवन. What is the even number? Even number is starting with the 0 2 4 6 8. Then again 10 12 40 60 80 सभी नंबर्स में लास्ट में क्या आएंगे? या तो लास्ट में 0 आएगा, या तो लास्ट में 2 आएगा, या तो लास्ट में 4 आएगा, या 6 आएगा, या तो 8 आएगा. अगर कोई भी नंबर के वंस के प्लेस पे, कौन से प्लेस पे? वंस के प्लेस पे या तो 0 2 4 6 8 आता हो तो वो सभी नंबर्स 2 से डिवाइजेबल है. फॉर एग्जाम्पल if we take the 2 8 6 at the ones place 6, it means the given number is divisible by 2. कोई और नंबर 2 4 5 3 8 6 0 तो ये नंबर बी कौन से 2 से डिवाइजेबल है? बिकॉज ऑफ दे हैव अ 0 एट द वंस प्लेस. कोई भी छोटा नंबर ले 3 4 8 4 तो यहाँ पे वंस के प्लेस पे क्या है?
4. So this number will be also divisible with 2. जगह नहीं है वरना मैं आपको करके बताता, ठीक है, नंबर डिवाइजेबल कैसे होता है। चलो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। 286 डिवाइड बाय 2, डिविजिबिलिटी ऐसे ही कहते हैं। 2 1 जा 2 0 8 2 4 जा 8 0 6 2 3 जा 6 0 आ गया 0। रिमाइंडर 0 हो इसका मतलब क्या होता है, गिवन नंबर इज परफेक्टली डिवाइड बाय डिवाइडर। ठीक है, बड़ा बड़ा नंबर तो पॉसिबल ही नहीं है। चलो बड़ा नंबर तो मैंने आपको बताया इस तरह से, अपने पास अभी जगह नहीं है, पर 3184 ये 2 से डिवाइजेबल होगा ही होगा। 2 1 जा 2 1 ऊपर से लिया 1, 2 5 जा 10 1 ऊपर से लिया 8, 2 9 जा 80 0 ऊपर से लिया 4, 2 2 जा 4 आ गया 0। रिमाइंडर आ गया 0। इट मींस गिवन नंबर विल बी आल्सो डिवाइडेड बाय 2। मतलब आपको माइंड में यह बात रखनी है कि कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो, कितने भी डिजिट का नंबर हो, अगर उसके वंस के प्लेस पे, कौन से प्लेस पे, वंस के प्लेस पे 0 2 4 6 और 8 हो तो वो 2 से डिवाइजेबल होगा ही होगा। मतलब उस नंबर को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमें 0 ही मिलेगा। ठीक है। सेकंड वन, डिविजिबिलिटी ऑफ 3। तो अब आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि कोई भी नंबर 3 से डिवाइडेबल है या नहीं है, उससे डिवीजन होगा या नहीं होगा। इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज द मल्टीपल ऑफ 3 देन द नंबर इज डिवाइजेबल बाय 3। आपको जो नंबर दिए गए हैं वो नंबर का डिजिट का आप एडिशन करो, उस डिजिट के नंबर्स का आप एडिशन करो, और अगर वो नंबर 3 का मल्टीपल हो, क्या हो, 3 का मल्टीपल। इसके अलावा आप ये भी ऐसे भी याद रख सकते हैं कि भाई इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिवाइडेड बाय 3 then the number is divisible by 3। यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, डिजिट इज a divisible by 3। अगर वो 3 का मल्टीपल होगा तो 3 से डिवाइड तो होगा ही होगा। ठीक है। अगर कोई नंबर के डिजिट का आप एडिशन करो, एडिशन करके जो आपको सम मिला है वो सम 3 से डिवाइजेबल है, तो पूरा डिजिट 3 से डिवाइजेबल है। फॉर एग्जाम्पल 3 2 3 4 2 3 4 या 2 3 4, तो इट मीन्स 2 plus 3, let me check, 2 plus 3 plus 4, 2 plus 3 5 plus 4 9, and 9 is divided by 3, then we can get 3. So this number also be divisible by 3, क्योंकि अगर मैं इस नंबर के डिजिट का एडिशन करूं, सम ऑफ डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 3 और डिवाइडेड बाय 3, then whole number is divisible with 3. Let me check. 23 4 divided by 3, 3 7s are 21, 0 3 sorry 0 2, 3 minus 1 2 4, 3 8s are 20 0 0 हुआ। मतलब अगर आप कोई नंबर के डिजिट का सम ले और वो सम या तो 3 का मल्टीपल हो या तो 3 से डिवाइजेबल हो, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइजेबल होगा। एक और बड़ा नंबर लेके देखते हैं, 2 1
Yes. This is the big number. Okay. 2 2,13,243। अगर ये नंबर 3 से डिवाइजेबल है कि नहीं कैसे मालूम पड़ेगा? तो पहली मेथड यही है, 2 + 1 + 3 + 2 + 4 + 3. So it become 2 + 3, 3 + 3 6, 7 8, 9 10 11 12, 13 14 and 50. It become 50, and 50 is easily divided by 3, or 50 is also be the multiple of 3. So this number is divisible with 3. Let me check. 2 1 3 2 4 3 3 3 7s are 21, 3 3 1s are 3 0 2 नहीं चलेगा 24, 3 8s are 24 0 0 ऊपर से लिया 3 3 1s are 3 0 आ गया 0, मतलब this number is divisible with 3. Okay, 71081 is the quotient of given example. कोई भी बड़ा नंबर हो उसके डिजिट का एडिशन अगर 3 का मल्टीपल होगा तो वो डेफिनेटली 3 से डिवाइजेबल होगा ही होगा. Now the divisibility of 4. A number with 3 or more than 3 digit. अब 4 की डिविजिबिलिटी में क्या होगा कि हमें छोटे नंबर तो डायरेक्टली मालूम पड़ जाएंगे ना, लाइक 40, 44, 48, 52, 56, 60 whatever. But a number with 3 or more than 3 digit is divisible by 4 if the number formed by its last 2 digit is divisible by 4. It means कोई बड़ा नंबर हो और बड़ा नंबर 4 से डिवाइजेबल है या नहीं है, वो चेक करने के लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा? तो कि लास्ट 2 डिजिट है, लास्ट 2 डिजिट और 2 से डिवाइजेबल 4 से डिवाइजेबल होगा तो पूरा नंबर 4 से डिवाइजेबल होगा. याद रखना बात, कोई भी बड़ा नंबर के लास्ट 2 डिजिट, कौन से लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइजेबल है तो पूरा नंबर 4 से डिवाइजेबल होगा. फॉर एग्जाम्पल लाइक 732, 732, तो यू कैन इजीली चेक इट. 32 इज द डिवाइजेबल बाय 4, 32 इज द डिवाइजेबल विथ 4. सो गिवन नंबर इज ऑल्सो बी डिवाइजेबल विथ एनी नंबर. इसका एग्जाम्पल के तौर पे 32 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 8. सो नाउ 732 divide by 4, 4 1s are 4, 7 minus 4 it become a 3. Now 3 take out, then 33, 4 8s are 32, 1 बचा ऊपर से लिए 2, 4 3s are 12, आ गया 0. एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, छोटा वाला, वो तो दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए. तो सेकंड एग्जाम्पल इज, कोई बड़ा नंबर लेते हैं 984324. नाउ यू कैन इजीली सी दैट लास्ट 2 डिजिट इज डिवाइडेड बाय 4. लास्ट 2 डिजिट इज डिवाइडेड बाय 4. देन ऑल नंबर इज डिवाइजेबल विथ 4. ओके, राइट डाउन द 3 डिविजिबिलिटी टेस्ट. सो हियर अभी तक हमने कितनी डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक की? 2, 3 और 4 की, ठीक है. और इससे आगे हमने क्या किया? एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट किया. तो ये जो टेस्ट है अभी 3 ही नहीं है, 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट सीखनी है, 6 की, देन 8 की, 9 की, 10 की, ओके, और 11 की. इतनी डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें अभी सीखनी है. तो अभी तक जो हमने ये 3 टेस्ट किए डिविजिबिलिटी टेस्ट, वो 3 टेस्ट आपको 2 टाइम्स लिखनी है. कितनी टाइम्स? 2 टाइम्स लिख के मुझे फ़ोटो भेजनी है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है. तो ये तीनों टेस्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट याद रखना. अगर मैं आपको ग्रुप में न भेजूँ तो भी
आपको ये टेस्ट, तीनों टेस्ट 2 टाइम्स लिख के मुझे भेजनी है। ओके, थैंक यू सो मच।